Hello everyone, my name is Yash Jaluka. I have secured All India rank 4th in this year's Civil Services examination. This was my first attempt in this exam. My optional was economics. A bit about my background. I was born and brought up in Jharkhand, in Jharia. I did my initial schooling from Jharia itself. Then I did my class 10th from Odisha, in a small town called Badbil, from St. Mary's School. I did my 11th and 12th from Delhi Public School in Bokaro, in Jharkhand. I came to Delhi for my graduation in economics from Kirodimal College. Then I did my master's in economics from the Delhi School of Economics. I finished my post graduation in 2019. Since then, I've been preparing for this exam, and the results were announced yesterday. About coaching, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, कोई क्लासरूम कोचिंग नहीं ली. आई डोंट थिंक कि इस एग्जाम के लिए कोचिंग एट ऑल रिक्वायर्ड है. इनफैक्ट आई वाज प्रीटी अगेंस्ट टेकिंग क्लासरूम कोचिंग. आई एडवाइज अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स अगेंस्ट इट. मैं किसी भी फ्रेशर को हु इज वाचिंग दिस वीडियो एंड कंसीडरिंग द क्वेश्चन ऑफ वेदर टू टेक अ कोचिंग और नॉट, आई वुड से कि इवैल्यूएट कि आप कहाँ पर है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है. देखिए, इस एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन का लेवल होता है या जो सब्जेक्ट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो क्लास 12th तक के ही होते हैं. आपको एनसीईआरटी आपके बेस होते हैं, आपको उन्हीं से थोड़ा सा आगे डेवलप करना होता है, एडवांस बुक्स पढ़ने होते हैं, बट बेस एनसीईआरटी ही होता है. एंड बिकॉज जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन का रखा है यूपीएससी में, देन कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट आई थिंक. वेलकम टू लुकमान IAS. Study general studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge, thorough understanding and a good perspective, which are essential ingredients of UPSC for getting top rank in civil services examination. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. So, Lukman IAS becomes the obvious choice. The renowned faculties are Lakshmikant for Geography, Ecology and Environment, Professor Mustaba Hussain for Art and Culture, Dr. Jia for History, and Abhijit Jha for Society. It is the pre-cum-means batch with integrated guidance program, which consists of prelims, means and interview. The course features live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, contact us today for more information. वो कर सकता है अगर वो थोड़ी सी मेहनत करे तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि कोचिंग लेने से पहले या उस डिसीजन को लेने से पहले आप इवैल्यूएट कीजिए, एनसीईआरटीज पढ़ के देखिए, बेसिक बुक्स थोड़े पढ़ के देखिए. वो मैं बता दूंगा कि कौन से बेसिक बुक्स मैंने पढ़ी थी. आप उनको पढ़ के देखिए. अगर आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल है, इफ यू कैन मैनेज ऑन योर ओन, देन प्लीज अवॉइड टेकिंग कोचिंग. इट कैन सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड मनी. Of course, this does not apply to optionals. मेरा ऑप्शनल क्योंकि इकोनॉमिक्स था एंड आई हैड अ बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं लगी. बट बहुत लोग दूसरे ऑप्शंस लेते हैं उनके ग्रेजुएशन स्ट्रीम से, तो शायद उनको जरूरत लगे. बट स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू जीएस की कोचिंग, आई डोंट थिंक इट्स एट ऑल रिक्वायर्ड. Regarding the plan for self study for a fresher, I would first of all suggest कि आप before starting spend at least a week going through the toppers talks and other strategies या blogs जो भी है अलग अलग टॉपिक्स के, जो भी आपके फील्ड से रेलेवेंट हो, उनको स्टडी कीजिए. दिल्ली नॉलेज ट्रैक इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहां पर बहुत सारे टॉपर्स के स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है. गो थ्रू देम, उनकी स्ट्रैटेजीज समझिए, उनका टाइमलाइन समझिए, उनकी बुक समझिए. Make a concise book list for yourself for every subject, for every area. Study the syllabus of UPSC in detail. वो काफी helpful syllabus है. And then chart out a strategy, chart out a timeline for yourself कि मुझे इस महीने तक ये targets, ये syllabus खत्म करना है, and stick to that. So I'll start by outlining the basic books that I follow. So for example, for ancient history, I started with R.S. Sharma का जो old NCERT है, मैंने उसको पढ़ा. उसको मतलब मैंने थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ा. द फर्स्ट रीडिंग मैंने रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, शुरुआत में ही. उसके बाद मैंने उसी से नोट्स बना लिए. देन आई डिड नॉट ओपन दैट बुक अगेन. उसके बाद मैंने जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है, शायद आई एम नॉट श्योर इफ इट्स 11th और 12th, बट एक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री बोल के जो एनसीईआरटी है, उसका जो एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट है, मैंने उससे उसको सप्लीमेंट किया. दिस वाज ऑल दैट आई डिड फॉर एंशिएंट हिस्ट्री. सिमिलरली फॉर मीडिएवल हिस्ट्री, सो मीडिएवल इज वन एरिया वेयर in the mains there are questions on art and culture aspect of it, but prelims में थोड़े बहुत random questions आते हैं उससे. So I noticed कि वो specific terms के ऊपर question पूछता है यूपीएससी.
कि व्हाट डज दिस मीन, कोई एक टर्म होगा जो मीडिएवल हिस्ट्री को बिलोंग करता होगा. सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने सतीश चंद्रा की जो बुक आती है, नॉट द एनसीईआरटी, देयर इज अ बुक बाय सतीश चंद्रा, उसकी पीडीएफ मुझे मिल गई थी इंटरनेट पे. मैंने उस बुक से जितने ऐसे वर्ड्स जो इटैलिक्स में दिए हुए थे, विच आर नॉट इंग्लिश वर्ड्स बट अरेबिक वर्ड्स और पर्शियन वर्ड्स, मैंने उन वर्ड्स को सर्च किया एंड आई नोटिस द मीनिंग ऑफ ऑल ऑफ देम. मैंने मेड नोट्स की अगर वो वर्ड मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है. एंड स्पेसिफिकली जो आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट्स थे उस बुक से मैंने वो पढ़ा. और एनसीईआरटी से जो आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट्स थे, अगेन सेम बुक, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट था फॉर मीडिएवल हिस्ट्री, मैंने वो पढ़ा. मैंने उसी से नोट्स बनाए. दैट वाज ऑल फॉर मीडिएवल हिस्ट्री वाला पार्ट. इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, डोंट फोकस अ लॉट ऑन इट आइदर फॉर प्रीलिम्स और फॉर मेंस. मेंस के लिए जस्ट फोकस ऑन द आर्ट एंड कल्चर एस्पेक्ट ऑफ इट, दैट्स ऑल. Regarding modern history, again, the NCERTs are your base. Themes in Indian history की जो book है, read that, and then Spectrum की जो किताब आती है modern history की, that's all. Read that and revise it as many times as you can. One thing that I did with Spectrum was, क्योंकि उसमें इतने सारे acts है, right, from all these charter acts and the Government of India Act, तो वो confusing हो जाता है कि किस act में कौन से provision थे, और वो prelims में काफी बार आता है कि ये कौन से act में था. So and that's a very easy area to score if you slightly work on them. So मैंने क्या किया, मैंने उन सारे acts का एक compilation अपने ही handwritten form में मैंने लिख लिया था and I kept on revising them. तो उसको रिवाइज करने से मेरा सॉर्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एक ही बार में कवर हो जाता था. बिकॉज अगर आपको वो एक्ट का एवोल्यूशन समझ में आ गया एक बार, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आ जाएगी इंडिया की. वो फ्रेमवर्क आपके दिमाग में बन जाएगा. राइट फ्रॉम द चार्टर एक्ट्स टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, मैंने उन सबके प्रोविजन, जितने भी मीटिंग्स हुए, जो भी प्लान्स आए थे, उन सब के प्रोविजंस मैंने एक ही जगह पे लिख ली एंड मैं उसी को रिवाइज करता था, स्पेशली फॉर मेंस. तो ये काफी हेल्पफुल था. बाकी जो स्पेक्ट्रम के जो अपेंडिसेस होते हैं वो काफी हेल्पफुल है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स. जो भी जितने वाइस थे उन सबको पढ़ना, उनके टेन्योर में क्या हुआ, ये सब. फॉर एग्जांपल दिस ईयर मेंस में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन लॉर्ड कर्जन एंड हाउ ही इंपैक्टेड इंडियन हिस्ट्री. सो वो अगर आपका अपेंडिक्स क्लियर है तो आप वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो वो क्वेश्चन. This was all for modern history. For post-independence history, I had read India After Gandhi while I was in college. So I really liked that book. It's one of my favorites. So I remembered that book more or less. मैंने उससे फिर थोड़े बहुत notes बना लिए थे, but not in too much detail. आपको general अगर awareness है, then you can attempt questions from that area. अगर नहीं है, then you can read that book. It's a very good read. आप एग्जाम के लिए नहीं भी प्रिपेयर कर रहे, it's still a very good investment to read India After Gandhi or any other book. For example, बिपिन चंद्रा की book है India Since Independence. You can pick any of them. Or if you don't want to spend time in these, if you're running short on time, then there's a very good series called Pradhan Mantri on YouTube by ABP News. You can go through that. That's an excellent series. So this was about post-independence history. Regarding art and culture, again, there's a very famous NCERT, Fine Arts की जो class 11th की NCERT है. That was my base. Apart from the old NCERTs for both ancient and medieval जो मैंने बताया, उसको मैंने Fine Arts के जो NCERT थे उससे supplement किया. And then I supplemented with Nitin Singhania. But Nitin Singhania very selectively, because अगर आपने Fine Arts और ये NCERT अगर cover कर लिया, your base is set. Nitin Singhania is just then for value addition. उसमें बहुत सारे irrelevant information भी है जो कि एग्जाम के लिए नहीं है important. One thing aspirants should realize is कि किसी एक साल यूपीएससी कोई रैंडम डांस या कोई रैंडम फोक आर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसके बारे में सब कुछ जानना है अगले साल के लिए फॉर प्रीलिम्स. इट्स नॉट अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी. सो मुझे ज्यादा ये पसंद नहीं था कि मैं अलग अलग साड़ीज के फॉर्म या अलग अलग पेंटिंग्स के फॉर्म याद करूं प्रीलिम्स के लिए. तो मैंने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया एंड इस साल आया भी नहीं प्रीलिम्स में. और अगर वैसे क्वेश्चन आते भी हैं तो दे आर नॉट मोर देन अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. यू कैन सेफली स्किप देम because you can save that time and study other things which have much more benefit cost ratio. So मैंने किया था. नितिन मैंने बहुत ही selectively पढ़ा था. For there's a very specific part of history called Buddhism and Jainism, जो कि बहुत ही ज्यादा recurrent and favorite topic है यूपीएससी का. तो जितना मेरा इन सोर्सेज से बुद्धिज्म जैनिज्म कवर हुआ, आई आल्सो ट्राई टू सप्लीमेंट इट. सो देयर इज दिस वंडरफुल बुक बाय मिस्टर एएल बैशम कॉल्ड द वंडर दैट वाज इंडिया. मैंने उसका एक चैप्टर है ऑन दीज रिलीजन्स, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. आई रेड दैट चैप्टर वेरी सिलेक्टिवली फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि उसमें कोई भी अगर ऐसा फैक्ट दिया है जो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में आ सकता है, तो मैंने उसको पढ़ा था. बट अनफॉर्चुनेटली जो जितने भी क्वेश्चंस आए बुद्धिज्म जैनिज्म के इस साल, मैंने वो गलत कर दिए प्रीलिम्स में. बट दैट्स माय मैसेज कि लुक, दीज एरियाज आर सच सो डाइसी कि इवन इफ यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम प्रिपेयरिंग ऑन दीज, देयर इज नो गारंटी कि आपका वो सही होगा प्रीलिम्स में. सो बी वेरी सिलेक्टिव व्हाइल रीडिंग दीज एरियाज. जो एकदम ही आपको लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री फॉर एग्जांपल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, सो फोकस ऑन दैट.
ignore the other areas if you don't have time, or don't focus a lot on those areas. This is about history for both GS1 in mains and prelims. Regarding geography मेरी काफी वीक एरिया है, मुझे ज्यादा पसंद नहीं था ज्योग्राफी पढ़ना. सो मैंने एनसीईआरटीज ही पढ़ा ज्योग्राफी का. क्लास 11th एंड 12th दे आर वेरी गुड बुक्स. मैंने जीसी लियोंग नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा. मैंने खरीदी थी वो, बट आई डिड नॉट रीड इट बिकॉज मुझे एनसीईआरटी सफिशिएंट लगी. तो आई केप्ट ऑन रिवाइजिंग एनसीईआरटीज बिकॉज वो मुझे थोड़ा वीक लग रहा था, सो आई फोकस्ड अ बिट मोर ऑन दैट. एनसीईआरटी में भी देयर आर फ्यू चैप्टर्स ओनली व्हिच यू नीड टू रीड. देयर आर सम चैप्टर्स लाइक लैंड फॉर्म्स जो कि काफी लेंथी चैप्टर है, बट एकदम ही अनइम्पॉर्टेंट है बिकॉज उनमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं. अगर आपका बेसिक्स कवर्ड है ज्योग्राफी का, स्पेशली रिगार्डिंग से वाटर सिस्टम या विंड सिस्टम्स, प्रेशर सिस्टम्स, यू कैन अटेम्प्ट प्रीटी मच ऑल द क्वेश्चंस इन ज्योग्राफी सेफली. मैप्स का काफी इंपॉर्टेंट इस्तेमाल होता है ज्योग्राफी फॉर बोथ मेंस एंड प्रीलिम्स. सो स्टडी मैप्स अच्छे से, बाय अ गुड एटलस एंड स्टडी द एटलस. सो एटलस में हर टॉपिक के लिए, हर थीम के लिए अलग अलग मैप होता है. So for example, ocean currents के लिए there is a separate map, different agricultural systems के लिए, vegetation systems के लिए, forest systems के लिए अलग अलग maps होते हैं. Study those maps, spend 10 to 15 minutes every day on studying maps. Again, जितने भी maps के question आए थे इस साल के prelims में, मेरे वो भी गलत हो गए because for some reason. But again, but don't ignore maps. You have to study that. It's very important, not only for the exam point of view, but because it's a very important supplement for understanding geography itself. So you have to do that. Again, for geography, there are very good channels on YouTube which are very helpful. PMFIS is one of them. I'm very grateful to them. उनके काफी conceptually clear videos होते थे. He watched a lot of them. Amit Singh Gupta's channel is excellent for geography. He has very good explainer videos on most of the key areas. Study IQ के important videos होते थे. Rajtamil ma'am के videos हैं on Munal sir's channel. So these are some of the videos I watched because of geography. As I said, it was one of my weak areas, so I tried to focus a bit more on that. Uh, for both prelims and mains. That's it for geography, I think. For then comes society part in mains GS1. Society ऐसा है कि उसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन आई डोंट थिंक रिक्वायर्ड है. इफ यू आर थरो विद न्यूज़पेपर्स, आपका मेंस के लिए यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस प्रीटी वेल. रीड द एनसीईआरटी ऑन सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जो एनसीईआरटीज हैं 11th 12th की. Read the NCERTs for a good base, for a good understanding. For example, there was a question a few years ago on secularism and how Indian secularism is different from Western secularism. वो verbatim NCERT से उठाया हुआ वो question है. So read the NCERTs, they're very good, very clear, very crisp. So आप वो पढ़ सकते हैं. That's your base for all these topics like secularism, communalism, regionalism, globalization. If you feel you are still lacking in these areas, then you can go through, you can search on the internet for a few articles on these. Say for example, globalization के ऊपर कुछ important thinkers ने क्या बोला है. But that's not absolutely mandatory. You can do that if you think कि आप answers attempt नहीं कर पा रहे हैं. One very important aspect of these questions are कि आपको examples clear होने चाहिए बहुत अच्छे से. So for example, इस साल के मेंस में there were a lot of questions in which examples were needed. So जैसे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आई रिमेंबर वन क्वेश्चन वाज देयर कि इज इट हार्मिंग इंडियाज ओन कल्चर और समथिंग. आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन एग्जैक्टली, बट समथिंग अलोंग दीस लाइंस. सो अब इन क्वेश्चंस में यू कैन नॉट जस्ट आर्ग्यू कि नहीं हो रहा है या हो रहा है. व्हाटएवर बी योर ओपिनियन, यू कैन स्टेट दैट फ्रीली, but whatever you're arguing, you need to be clear with examples. So, and this is where I think reading newspapers is extremely important, which is one of the core areas of my preparation. So मैं हर दिन newspaper पढ़ता था. सिलेक्ट पिक एनी वन ऑफ द न्यूज़पेपर. अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि मैंने उसी मीडियम से करी थी, तो मैं उसके लिए रिकमेंड कर सकता हूँ. आई डोंट हैव मच आइडिया ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर व्हिच आर सूटेबल फॉर यूपीएससी. आई एम श्योर देयर आर एस्पिरेंट जिन्होंने उसके बारे में सजेशन दिए होंगे. इंग्लिश के लिए यू कैन पिक आइदर द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू. बोथ आर इक्वली गुड. मैं द हिंदू पढ़ता था प्राइमरीली. इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन वाला सेक्शन मैं फॉलो करता था बिकॉज दैट वाज वेरी गुड. So read these newspapers और उनमें से जो examples आपको relevant लगते हैं, say for example a good secular act that some person has done or something that the government has done or the judiciary has said, note that down in your notes and keep on practicing them while writing answers and just include them. So this will differentiate your answers from say people who are just reproducing stuff taught in the coachings, because वो बहुत run of the mill होता है, but not everyone copies the examples coming down in the newspapers every day. That can really differentiate your answers and give you that extra edge. So read newspapers अच्छे से. That's a very very good investment. So this was about the society and all part जो भी GS1 में है. I think newspapers will cover you through and through. For prelims में उसके ऊपर इतना important focus नहीं होता है.
रिगार्डिंग GS2 का कोर है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसके लिए यू हैव टू रीड लक्ष्मीकांत, दैट्स द बुक. इफ यू थिंक दैट आपका पॉलिटिकल थ्योरी थोड़ा वीक है, देन यू कैन गो थ्रू द एनसीईआरटीज. आई वाज कंफर्टेबल इन इट पहले से, बिकॉज मैंने कॉलेज में थोड़ा बहुत डिबेटिंग किया था, so I had some idea of it, so I skipped the NCERTs. But if you don't have much base in it, then please feel free to go through the NCERTs. They're excellent, worth the time. Then read Lakshmikant cover to cover all the chapters, and keep on underlining the important parts. Don't need to make notes out of it. I mean, that's your preference ultimately, but NCERT Lakshmikant is in itself in notes form, so you won't gain much by making notes out of it. But again, Lakshmikant is not enough at all, because polity, especially GS2, is one area which is extremely dynamic. आपको rarely ही ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आप सीधे लक्ष्मीकांत से आंसर कर सकते हो. आई डोंट थिंक ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस क्या है, जो आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा और आपने लिख दिया. तो वो आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछेगा, और उसके बाद फाइनेंस कमीशन का रोल पूछेगा फॉर एग्जांपल, या इंपॉर्टेंस पूछेगा, या एवोल्यूशन पूछेगा, which is not given directly in Lakshmikant. So for that you need a bit deeper layer of understanding, and this is where again newspapers play a very very important role, because newspaper में जो editorials आएंगे, जो आपके examples आएंगे, जो news आएगा, वो आपकी understanding को deepen करते जाएगा over the years. Have patience with that, because वो overnight नहीं आता है. It takes time to develop these things. So stay patient, read the newspapers. One very important suggestion here is कि पॉलिटी के GS2 में केस साइट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कोई भी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट है, किसी भी हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट है, सो न्यूज़पेपर्स में ये आते रहते हैं. तो कीप ऑन नोटिंग दोस केसेस डाउन. द इंपॉर्टेंट केसेस जो है वो आई थिंक प्रीटी मच एवरी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट नोज, जैसे केशव नंदा भारती केस हो गया, या मिनर्वा मिल्स केस हो गया. बट देयर आर सम not so famous cases but equally important cases, especially in areas say like capital punishment or custodial deaths, या torture in police stations, या say for example abortion rights of women. ये areas हैं जिनमें cases अगर आपको पता है, you cite them in your answers, then it can really set you apart in your answer writing. So और ये cases you don't need to do any special preparation or any special search for this. There are amply available in the newspapers. जो भी टॉपिक आता है मोस्टली किसी न किसी एडिटोरियल में, फॉर एग्जांपल गौतम भाटिया हो गए, या जे साई दीपक हो गए, या प्रोफेसर फैजान मुस्तफा हो गए, इनके जो एडिटोरियल्स आते हैं या इनके जो आर्टिकल्स आते हैं, उनमें बहुत अच्छे से पेपर्ड होते हैं ये केस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स. नोट देम डाउन. सो नोट देम डाउन ऑन अ सेपरेट शीट. अगर आप हार्ड कॉपी नोट्स बना रहे हैं या आप सॉफ्ट कॉपी नोट्स बना रहे हैं, नोट देम डाउन ऑन अ सेपरेट शीट and keep on revising them and incorporating them in your answers whenever possible. For prelims, polity, again, I think Lakshmikant is sufficient, but again, you have to practice it. And one very important advice for prelims is कि जितना कोचिंग के टेस्ट सीरीज में जो लेवल के क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स पॉलिटी से रिलेटेड, उस लेवल का यूपीएससी नहीं पूछता है. प्रीलिम्स के जो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर आते हैं कि अच्छा इस फंक्शनरी को अपॉइंट करने में जो बॉडी होती है उसमें क्या कॉम्पोजिशन होता है, वेरी कंफ्यूजिंग थिंग्स. ऑनेस्टली आई हेटेड दोस पार्ट्स, बट करना पड़ता था. बट आई डोंट थिंक यूपीएससी उस तरह से आपको टेस्ट कर रहा है. इट डज नॉट सीक टू टेस्ट यू ऑन दोस थिंग्स एनीमोर. सो जो अब आप देखेंगे पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, दे मोर अप्लाइड, मोर कंसेप्चुअल इन नेचर. कि फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या है आजकल. नो कोचिंग टेस्ट सीरीज कैन टीच यू दिस, नॉर लक्ष्मीकांत कैन टीच यू दिस. ये आपका अपना इंटरप्रिटेशन, आपका अपना अंडरस्टैंडिंग है जो इस साल के क्वेश्चन में आया था. So for that again you need to understand the things behind any article in the constitution. So for that again you don't need to do any special preparation. Read Lakshmikant, read it multiple times, so आपका thoroughly understanding develop होता जाएगा. If you supplement that with a study of UPSC's past years papers, आप देखिए कि वो आपसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, उसके हिसाब से लक्ष्मीकांत को पढ़ने की कोशिश करें. कि अगर वो मुझसे ऐसे इंटरप्रेटिव क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, then I should not be content with just reading the articles or just reading the provisions of the constitution. That's not enough anymore. So आप वो समझिए, एडिटोरियल्स पढ़िए, एडिटोरियल से आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी. ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एडिटोरियल्स आते हैं, बोथ इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू और एनी अदर न्यूज़पेपर. आप वो पढ़ेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि एक नौकरशाही का काम क्या होता है एक लोकतंत्र में. कि वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है, या इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना होता है, या क्या होता है. तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी खुद से. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटी का. यू हैव टू डू दीज थिंग्स. देयर इज अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ पॉलिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इन द सिलेबस, जो कि आपको स्पेशली करना पड़ेगा, बिकॉज वो लक्ष्मीकांत में उतने अच्छे से नहीं दिया हुआ है. सो व्हाट आई डिड वाज, आई
took the PDF of the Representation of People's Act और मैंने उसको पढ़ा था अच्छे से. आई मतलब पूरा एक्ट नहीं, इट्स अ प्रीटी लेंथी एक्ट. सो मैंने उसका जो जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस मुझे लगे, फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन और रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज या करप्ट प्रैक्टिसेस वाला जो सेक्शन था, आई रेड दो सेक्शंस इन डिटेल. मैंने उनको समझने की कोशिश करी कि वो लिंक क्या है, कि अगर इलेक्शन में डिस्प्यूट हो रहा है तो व्हाई डू आई नीड टू गो टू द हाई कोर्ट, और व्हाट इज द प्रोसीजर एंड व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दैट. एंड दैट पेड ऑफ बिकॉज इस साल के GS2 के पेपर में डायरेक्टली वही से क्वेश्चन आया था, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रैशनल बिहाइंड some of the RPA provisions. So that is again very important. So you need to go through the RPA. Here, I liked reading the Bear Acts. मुझे Bear Acts पढ़ना अच्छा लगता था. कोई भी अगर एक्ट होता था जो कि न्यूज में होता था, और the amendment or something that was in news, I was not content with say PRS legislative का summary or anything. But again, this is not something that I I think I can advise everyone to do, because not everyone will be inclined to do that, और सबके पास वो टाइम नहीं होगा. So I think for that summaries are enough. But if you can, then try to go through the Bear Act. उसमें एक statement of provisions होता है, statement of objects होता है, जो कि गवर्नमेंट समझाती है कि वो क्यों ला रही है वो पर्टिकुलर अमेंडमेंट, या क्यों ला रही है वो पर्टिकुलर कानून, जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकता है. देयर आर सम एक्ट्स जिसके लिए कुछ सेक्शंस होते हैं जो आपको समझने में हेल्पफुल हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल UAPA, जो न्यूज़पेपर में जो उसका एनालिसिस होता है वर्सेस जो एक्चुअल सेक्शंस होते हैं, अगर आप एक्चुअल सेक्शंस नहीं पढ़ेंगे बेयर एक्ट से, तो एक डिस्कनेक्ट आ जाएगा एडिटोरियल में और जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं. सो आई वुड रेकमेंड कि जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो न्यूज में चल रहे हैं, जैसे UAPA हो गया या NSA हो गया, इन एक्ट्स के जो रेलेवेंट सेक्शंस है, try to study them from the Bear Act itself. For example, FR Game Act is another key act जिसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं. So try to study all these acts के जो important sections है in detail. That will really pay you off in the longer run, both while preparing for the exam as well as in the service, because it's a good habit for a bureaucrat to uh, be adept at reading the Bear Act itself. So वो थोड़ा सा अगर आप आदत डाल सकते हैं तो वो काफी हेल्पफुल होगा फॉर पॉलिटी. रिगार्डिंग द गवर्नेंस पार्ट, गवर्नेंस इज प्रीटी लेंथी. उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे गवर्नेंस स्कीम्स हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, वल्नरेबल सेक्शंस, सिविल सर्विसेज, सिविल सोसाइटी, ऑल दीज पार्ट्स आर देयर. सो फॉर दिस मैंने एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए देयर इज दिस वंडरफुल बुक बाय प्रोफेसर अमर्त्य सेन एंड जॉन ड्रेस, अन अनसर्टेन ग्लोरी. मैंने उस बुक से आई फॉर्म द बेसिस ऑफ माय नोट्स फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, कि वो उनके आर्गुमेंट्स क्या है. And then I used to supplement it with newspapers. So I made separate areas for school education, higher education, skill development, and these things in education and health also. For example, universal healthcare, then primary healthcare, tertiary healthcare. All these areas I made separate provision, separate parts in my notes, and then I used to just insert the relevant news articles that I was getting or relevant data that I was getting in the relevant part of my notes. I made completely digital notes because I think that is incredibly helpful. मैंने Evernote यूज किया था, but you can use any of the apps. You can use Microsoft Word as well. That's completely up to you. But I would recommend you to use the digital format if you can, because that will help you a lot when you are revising or when you are updating notes. Because जितना current होते जा रहा है civil service का preparation, it will be better if you use the digital format to store your notes. So this was regarding education and health. Other areas regarding civil services and all, again it's completely newspaper based. आपको थोड़े बहुत constitutional provisions पता होने चाहिए कि वो क्या है. For example, Article 311 क्या है, उसका जो एक स्पेशल सेक्शन आर्टिकल 311 सेक्शन 2 आई थिंक, जिसके अंदर गवर्नमेंट कैन डिसमिस सिविल सर्वेंट विदाउट एन इंक्वायरी. सो वो अभी काफी न्यूज में है. इट्स बीन यूज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर. सो रीड दैट सेक्शन. फॉर एग्जांपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों है, या सिविल सर्वेंट्स को जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्यों है. शुड इट बी रिमूव्ड, जो कि एक आर्गुमेंट है फॉर इंश्योरिंग बेटर सर्विसेज बाय ब्यूरोक्रेसी, और शुड इट नॉट बी रिमूव्ड. तो इसके ऊपर ARC की रिपोर्ट्स है. सो ये थोड़ी चीजें हैं सिविल सर्विसेज के ऊपर which you can read. There is an excellent chapter in a book called Rethinking Public Institutions in India by Mr. TV Somnathan. I think he was the expenditure secretary or revenue secretary some time back. So that's an excellent chapter on the evolution of civil services and the problems plaguing it right now. So if you can get a hold of that, do try to read it. It's an excellent chapter. You will gain a lot out of it. But apart from that, there are इस एरिया में ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है. Current affairs are enough. Regarding vulnerable sections, again you need to know the basic statistics about each vulnerable section. So for example, SCs का population distribution, STs का population distribution, women का population distribution, children, PWDs, elders, refugees, all these are important vulnerable sections for which you need to know कि इंडिया में क्या है, कितने हैं, कहाँ पर है.
So ये पता होना चाहिए. These will form the skeleton of your notes wherever you are making. Then supplement it with analysis of say कि SCs के लिए क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. So you need to start by the very mother of all laws, the constitution. कि constitution में SCs के लिए क्या provisions है, constitution में STs के लिए क्या provision है and everything. Then go to the important other laws. For example, SC/ST prevention. You need to understand that. Then say the Forest Rights Act. So in act उनके इश्यूज आते रहते हैं, उनको समझिए कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर इट वाज अलॉट इन ने एविक्शन ऑर्डर कर दिया था बहुत सारे ट्राइबल्स का, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट फॉर दैट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो प्रोटेस्ट क्यों हो, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच एंड एवरी अदर इशू. सो वो समझिए. Similarly for women and everything, try to incorporate important UN conventions जो है for SC, STs, women, children, everyone. रेफ्यूजीज के लिए इंडिया की पॉलिसी क्या है? इंडिया डज नॉट हैव अ स्ट्रिक्ट रेफ्यूजी पॉलिसी, बट इंडिया डज हैव अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग. तो वो 3 लेयर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो समझिए कि वो क्या है, वो क्यों है. इंडिया ने रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं ऑफ की, उसके बाद भी वी हैव एन एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन. सो वो क्या है, व्हाट आर आवर एथोस, सिविलाइजेशनल एथोस जो है वो चीज. ऑल ऑफ दीज थिंग्स इंडिया के इंपॉर्टेंट रेफ्यूजी प्रोटेक्शन जो हमने दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल चकमास एंड हजोंग्स, श्रीलंकन तमिल्स, West Pakistanis, East Pakistanis, all those important are there in India, Tibetans. So you need to study all of these things. इनको थोड़ा डिटेल में समझिए, because not be directly asked in the exam, but it's very important for you to understand कि इंडिया की ये ह्यूमेन पॉलिसी कहाँ से आ रही है. Even though it may be criticized sometimes, for example, recently because of Afghanistan and जो visa issue हो रहा है, but despite that we have got, so it will help you understanding these things, will help you in critiquing whatever is happening without say getting influenced narrative that is there in the media, either positive for the government or against the government. So ये issue समझना बहुत जरूरी है. Same for all the vulnerable sections. ARC reports you can use, but for SC, STs and I think they're slightly dated. So this is where I would like to comment on ARC reports. There are 15 or so ARC reports, but think about this. ARC reports कुछ आए हुए 15 साल हो गया है, and वो सिर्फ सेकेंड था, and government ने बिगा, and that was a pretty important commission. So a lot of the recommendations that have been implemented already. बट क्योंकि सिविल सर्विसेज में कोचिंग का इतना ज्यादा डोमिनेंस है, पेडल किया जाता है नैरेटिव की रन ऑफ द मिल आंसर्स, कि आपको एआरसी कोट करते ही रहना है अपने आंसर्स में. तो सारे एस्पिरेंट्स बिना सोचे समझे एआरसी की रिकमेंडेशंस कोट कर रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो ऑलरेडी रिकमेंड हो चुके हैं, इम्प्लीमेंट हो चुके हैं या नहीं. So whenever you are studying any recommendation of the ARC, please try to see implement हो चुके हैं या नहीं. If अगर हो चुके हैं, then there is no point of you recommending that in your answer. ठीक है, वो सो जब भी आप एआरसी रिपोर्ट पढ़े वो बात का जरूर ध्यान रखें. इसके बाद आपके पास बहुत ही सिलेक्टिव रिकमेंडेशंस बच जाएंगे एआरसी के हर टॉपिक को लेके, और सारे रिपोर्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. देयर आर वेरी few reports which are very important. For example, the ethics का report है, I mentioned about it when I talk about GS4, but that report you should read cover to cover. Apart from that, the other reports can be done by reading just the recommendations. And if you want, you have some time, then the speech that is given by the Honorable Chairman, Mr. Veerappa Moily, at the end of the report, that explains the soul of the report in a way. So you can read that speech to get what the report is saying. So that's that for ARC. I think that's nothing more is required from that. UPSC के examiners भी I think अब तक they काफी used to हो चुके होंगे by reading the same thing. So you need to move on to other areas now. So this was regarding vulnerable sections. I think I've covered the areas in GS2. Sorry, international relations again, very important area. Prelims के लिए इतना important नहीं है, but of course very important for mains. So international relations के लिए again you need to first form a basis of India's relations with other nations, important nations, not all the 200 or so nations. So divide the nations in major groups. For example, the major powers: US, UK, France, Russia, Germany, Australia, Japan, China. All these are major global powers. So India के इनके साथ क्या relations है? Then our neighborhood, which again includes China, Pakistan, Sri Lanka, and all these nations. Then say the smaller nations, for example, उनके साथ इंडिया की क्या relations है? Because India has always been a leader of the smaller nations. So क्या इंडिया की policy रही है? So divide the nations into these groups. It will provide a broad framework within which you can study international relations. Having done this, then start collecting the news articles. You don't need to go way back in time. Just आप जिस दिन से preparation शुरू कर रहे हैं, उस दिन से newspaper को अच्छे से international relation news के लिए follow करना शुरू कीजिए. उसके लिए this is one good thing about the Hindu and the Indian Express. They have excellent writers on international relations. For example, Professor C. Raja Mohan in the Indian Express, excellent editorials. Almost
I think he has a weekly column also. Mrs. Suhasini Haider in the Hindu. Then there are so many other authors. Stanley Johnny again in the Hindu. So follow these authors specifically. इनके काफी अच्छे editorials होते हैं regarding international relations. Then international relations में for some nations you do need to have a bit of a background to understand the issue. So for example Israel Palestine का conflict क्या है या इंडिया चाइना के बीच में जो LAC का पूरा इशू है वो क्या है या इंडिया पाकिस्तान के बीच में देयर आर थ्री टाइप ऑफ बॉर्डर्स द एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन द LOC एंड इंटरनेशनल बॉर्डर तो वो डेमार्केशन क्या है व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट इंडिया बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट अगर हुआ है तो वो क्या है तो नेपाल के साथ इंडिया के रिलेशन इतने डायनेमिक है और दे कैन बी प्रीटी फास्ट इन चेंजिंग देमसेल्व्स सो वो उनका हिस्ट्री क्या है ये चीजें समझना काफी जरूरी हो जाता है जिनके बिना आप मॉडर्न जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं उनको प्लेस नहीं कर पाएंगे इन द अप्रोप्रिएट प्लेस सो for that there's an excellent book by Mr. Shyam Saran. He was India's former foreign secretary, How India Sees the World. You can read that book if you have the time. It has an excellent grounding in what India's relations with other nations have been. बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है फॉर एग्जांपल मुझे सियाचिन इशू का पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसी बुक से आया कि इंडिया के जो बॉर्डर्स है पाकिस्तान के साथ वो किस बेसिस पे हैं वो तीनों बॉर्डर्स जो है इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर काफी अच्छा बेसिस प्रोवाइड करता है इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर अगेन देयर आर एम्पल वीडियोस ऑन यूट्यूब एम्पल आर्टिकल्स ऑन द इंटरनेट व्हिच यू कैन स्टडी टू गेट अ बैकग्राउंड ऑन द इशू बिकॉज वो इशू अनफॉर्चुनेटली काफी परसिस्टेंट है और वो रहेगा ही चाहे आप किसी भी साल प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको वो समझना बहुत जरूरी है कि वो क्या है अगेन मिडिल ईस्ट द एंटायर दिस हॉटस्पॉट दैट इज देयर इन द मिडिल ईस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स सो यू नीड टू नो कि हु इज फाइटिंग whom कौन किसका प्रॉक्सी है कौन किसके लिए लड़ रहा है कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है ऑल दीज यू नीड टू अंडरस्टैंड सो देयर आर एक्सीलेंट चैनल्स ऑन यूट्यूब फॉर एग्जांपल Vox is an extremely good channel which you can follow on YouTube जिसके थ्रू आपको ये इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अल जजीरा इज अनदर गुड चैनल व्हिच मे बी स्लाइटली बायस्ड समटाइम बट despite that it has pretty good information so follow these channels for a good understanding of international relations के background issues कि वो क्या हो रहा है वहां पर then just keep on supplementing it with your current affairs notes that's enough I think international relations के लिए there's nothing else to be done current affairs are more than enough practice answer writing of course which I'll come to later separately prelims में international relations of course उतना नहीं होता है except for international organizations so first when you're starting try to just think roughly of जो आपके दिमाग में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट आ रहे हैं फॉर एग्जांपल G20 G7 क्वाड हो गया देन आसियान हो गया देन सार्क BIMSTEC यूनाइटेड नेशंस एंड देयर डिफरेंट एजेंसीज SCO these are some of the important organizations that's it note them down note their important functions note their members that's it उनके इंडिया के साथ क्या रिलेशन है उसके बाद आपको खोजने की जरूरत नहीं है कि मुझे दुनिया के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करना है नो दैट्स नॉट रिक्वायर्ड जो भी न्यूज में आए कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टडी अबाउट दैट्स इट उसके बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं है अगर उसके बियॉन्ड कुछ आ रहा है दैट्स योर बैड लक बट दैट्स अ गुड थिंग दैट्स एवरीबॉडीज बैड लक सो यू विल नॉट बी पेनलाइज्ड फॉर दैट आपको नुकसान नहीं होगा आइडन फिल्म्स और इन मीन्स फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर कुछ 4-5 साल पहले एक क्वेश्चन आया था जीएसटी में ऑन सम मैकेन्रो कमीशन और सम रैंडम कमीशन ऑफ द यूनेस्को किसी को नहीं आता था वो क्वेश्चन so ऐसे क्वेश्चंस आएंगे यू डोंट नीड टू प्रिपेयर फॉर दोस क्वेश्चंस ठीक है नीड टू प्रिपेयर फॉर द अदर 18-19 क्वेश्चंस जो आपको शॉर्ट आएंगे ठीक है सो डोंट रन after every random organization that's there on the internet it's a never ending search so just focus on those organizations जो आपको न्यूज में आ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए उनकी वेबसाइट पे जाके कि कौन मेंबर्स है इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है अगर इंडिया मेंबर नहीं है तो इंडिया का ऑब्जर्वर है नहीं है तो क्यों नहीं है तो वो सब चीजें पढ़ लीजिए दैट्स इट तो दिस कवर्स GS2 ये आपका ऑब्वियसली प्रीलिम्स भी कवर कर लेगा बिकॉज प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या मेंबर है इंडिया का क्या रिलेशन है ऑल दीस थिंग्स रिगार्डिंग GS3 का पूरा फाउंडेशन है इकोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट रिगार्डिंग इकोनॉमी मैंने कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की थी बिकॉज मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय ऑप्शनल एज वेल बट अगर आपका नहीं है बैकग्राउंड एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर स्पेसिफिकली फॉर इकोनॉमिक्स आपको अगर थोड़ा सा वीक लगता है वो देन आई वुड सजेस्ट यू लुक एट अदर टॉपर्स वीडियोस कि वो उन्होंने कैसे स्ट्रेटजी फॉलो की वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड रिकमेंड इज कि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं या कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो देयर इज अ बराज ऑफ डेटा पॉइंट्स आपको कोई भी एडिटोरियल आएगा उसमें समवन विल साइट कि एम्प्लॉयमेंट रेट इतना है या इन्फ्लेशन रेट इतना है जीडीपी ग्रोथ रेट का एक्सपेक्टेशन इतना है इन्वेस्टमेंट रेट इतना है एंड यू विल बाय द एंड ऑफ अ कपल ऑफ मंथ्स अगर आप रेगुलरली इन सबको कलेक्ट कर रहे हैं यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि भाई इन्वेस्टमेंट रेट है कितना इंडिया में मेरे साथ ये चीज हुआ था बिकॉज आई वाज श्योर कि मुझे डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय ऑप्शनल
सो बाय द एंड ऑफ अ फ्यू मंथ्स जब मैंने रिवीजन शुरू किया तो मुझे लगा यार मुझे पता ही नहीं कि इन्फ्लेशन एक्चुअली में कितना था, बिकॉज मेरे पास 5-6 अलग अलग डेटा पॉइंट्स थे. So I had to clean my notes a lot by eliminating all the irrelevant data points. So then I realized that you need to have a separate data sheet जो आपका एक master data sheet होगा जहां पर सिर्फ authentic sources से आपके पास important data points जाएंगे. For example, inflation का data आरबीआई की वेबसाइट से या इकोनॉमिक सर्वे से आप वहां पर इन्फ्लेशन का डेटा एंटर कर दीजिए, या अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, या जीडीपी ग्रोथ रेट का हिस्टोरिकल ट्रेंड, या इंडिया के करंट अकाउंट बैलेंस, या जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स है वो आप वहां पर एंटर कर दीजिए. वंस दैट इज एंटर्ड, दैट वो ब्रह्मा जी की लकीर हो गई. ठीक है, उसके बियॉन्ड मत जाइए. वो स्टेटिस्टिक्स आपको फॉलो करने हैं, डोंट डिविएट फ्रॉम देम. ठीक है, एंड रिमेंबर दो स्टेटिस्टिक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड कि वो क्यों हो रहा है. ठीक है, वंस यू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, आपके लिए एग्जैक्ट नंबर याद करना बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, सो वो चीज प्रैक्टिस कीजिए. बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि हाउ डू रिमेंबर द एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स. डोंट ट्राई टू स्टार्ट बाय रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स. वो कभी नहीं होगा. अगर आप शुरू करेंगे, आपको लगेगा कि मैंने एक हफ्ता प्रिपेयर किया एंड आई नीड टू रिमेंबर कि अच्छा 2016 से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड कि अच्छा क्या हुआ, क्या इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट्स हुए, और उसके अराउंड इंडिया का ब्रॉड ट्रेंड क्या था. वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दोस इकोनॉमिक ट्रेंड्स, द डेटा विल फॉलो ऑटोमेटिकली. ठीक है, डेटा ऑलवेज रिमेंबर, डेटा इज एन एक्सप्लेनर ऑफ ट्रेंड्स दैट आर हैपनिंग ब्रॉडली इन द इकोनॉमी. ठीक है, सो फर्स्ट आपको ट्रेंड समझना होगा, जो इकोनॉमिक फेनोमेनन है उनको समझना होगा, उसके बाद आप डेटा पॉइंट पे आइए. डेटा पॉइंट ग्रेजुअली याद हो जाएंगे जैसे जैसे आप अपने आंसर्स में इंकॉर्पोरेट करना शुरू करेंगे उनको. बट डू ट्राई टू हैव अ सेपरेट मास्टर डेटा शीट. वो आपको बहुत काम आएगा रिवीजन के टाइम पे भी, जो आप मेंस के पहले जस्ट आपको रिवाइज करना है, या प्रीलिम्स के पहले जस्ट आपको ट्रेंड समझना है. That's for economy. For mains preparation, I think some detail I'll give later on, but there are some areas in prelims which are very important. For example, fiscal and monetary policy. कि monetary policy expansionist होता है तो उसका मतलब क्या होता है, या inflation control करने के लिए which are these things that RBI can do. उसमें I don't know from exactly where you can prepare, but I think the class 12th NCERT for macroeconomics will be helpful. That's a good book. अगर वो नहीं है, then I think मृणाल सर के videos, I have heard people say this a lot. They are very helpful. You can go through them. Prelims के लिए these are important areas for economy. Apart from that, I think अगर आप current affairs economy का decently अगर follow कर रहे हैं, that's helpful. That's enough, I think. So अगर आपको कोई इकोनॉमिक टर्म अगर आया मेंशन है न्यूज़पेपर में और आपको नहीं पता है उसके बारे में, आई डोंट हैव इनफ क्लैरिटी ऑन इट, देन डू सर्च दैट ऑन द इंटरनेट, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. फॉर एग्जांपल, पोटेंशियल जीडीपी का इस बार क्वेश्चन आया था मेंस में. वो इट्स अ वेरी कॉमन टर्म ऐसे अगर देखा जाए कि पोटेंशियल जीडीपी, बट इस बार मेंस में उन्होंने एग्जैक्ट पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल जीडीपी. तो अगर हम ऐसे जेनेरिक आइडिया अगर अपने दिमाग में लेके चले, बहुत बार होता है कि हम एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं इस वजह से, या टाइम जा सकता है व्हेन वी ट्राई टू क्रिस्टलाइज दैट वेग आइडिया ऑनटू द पेपर. सो try, if you're not absolutely crystal clear about something, do try to spend a few minutes on the internet, try to search for that term कि उसका मतलब क्या है, and as far as possible go through the authentic sites. For example, there's a fantastic website mentioned by the maintained by the Indian Economic Services Officers called Arthapedia. So Arthapedia पे आपको बहुत सारे economic terms के definitions, explainers सब मिल जाएंगे. Go through that. Then investopedia.com is another very good website economic terms को समझने के लिए. So these are some of the important websites जहां आप ये सब चीज समझ सकते हैं. आरबीआई की वेबसाइट पे there is an excellent page on the tools of monetary policy. So they explain all the various tools that they have, repo rate, reverse repo rate, ये क्या होता है. Understand that, that's very important. वो आपको पूरा monetary policy समझ में आ जाएगा वहां से, broadly at least, कि क्या होता है, हर एक चीज से वेरिएशन करने से क्या किया जा सकता है. So once you have that, I think you can answer these questions very easily in the actual prelims exam. So then regarding statistics, so recently agricultural statistics पे या general statistics पे काफी focus रहने लगा है यूपीएससी का इन prelims कि अच्छा इस चीज का largest producer कौन सा state है, या इसमें trend क्या है इंडिया का. तो for that agricultural ministry has a very lengthy document from 500-600 pages का agricultural statistics के ऊपर. I don't remember the exact name, but I think if you search you will get it. agricoop.nic.in पे शायद ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आपको, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स का हैंडबुक. ऑन दैट गो थ्रू द कंटेंट्स, देन फाइंड द इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स दैट आर देयर. फॉर एग्जांपल कि इंडिया में टॉप क्रॉप्स कौन से हैं, ठीक है, वो उस डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छे से दिए हैं कि लार्जेस्ट यील्ड इंडिया में किस क्रॉप का है, बोथ बाय एरिया
एंड बाय एब्सोल्यूट अमाउंट, ठीक है। और फिर हर स्टेट में जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो कौन से है, टॉप 3 प्रोड्यूसर्स, वो आपको मिल जाएंगे। सो गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट, उसमें समझिए फिर इरिगेशन कवरेज हर स्टेट में कितना है, टॉप स्टेट्स कौन से इरिगेशन कवरेज में, फर्टिलाइजर कवरेज में कौन से टॉप स्टेट्स हैं, ये स्टैटिस्टिक्स उस डॉक्यूमेंट में काफी अच्छे से मिल जाएंगे आपको। So just tabulate all these important, only the important statistics, because the document काफी बड़ा है, it's not all is less than 5% is relevant from the document. But it's very helpful for prelims. So, and also for generally understanding India's geography and climate and economy in general. So that's that. Then another set of statistics which is very important is say power distribution के ऊपर इंडिया की statistics क्या है, या कौन क्या power का प्रोफाइल क्या है इंडिया में, कि सोलर का कितना शेयर है, रिन्यूएबल्स का जनरली कितना शेयर है, न्यूक्लियर का कितना शेयर है। ऑल these things you can get from the economic survey or from the website of the power ministry or the ministry of new and renewable energy. उनकी वेबसाइट पे जाइए, they will spend some time studying those. It's important for you to understand these things because ये both for prelims and mains काफी important है, and also for the climate change related questions कि इंडिया का transition कैसा होने वाला है towards cleaner fuels. So try to understand these things. वो pie chart form में अच्छे से दिए हुए हैं. I'll be uploading my own notes on the internet where I try to collect these data points. I think it will be helpful, but of course you have to update them year on year. So you can at least see what format I'm talking about for a better understanding. So ये है that's that for economy. I think economy में जो specific sections हैं in mains, मैंने उनके लिए कोई खास अलग से तैयारी नहीं की थी, जैसे infrastructure हो गया या food processing हो गया या कुछ भी हो गया। As I said, मेरा optional economics था, so साथ बाय साथ वो prepare होते जा रहा था, and mostly it's newspaper based. So आपको अगर जैसे agriculture sector है, agriculture sector में जैसे इस बार की GS3 is not a really good indicator कि GS3 आपको कैसे prepare करना चाहिए, because इस साल का GS3 was relatively very easy compared to other years. But despite that, आपका preparation should not change because of that. So you need to so food processing for example हो गया, agriculture की general problems हो गया, वो try to study from the newspapers as much as you can. That's enough, I think. जो current affairs based questions होते हैं, again collect statistics, but only the authentic statistics, collect examples and collect good practices. So अगर आपको newspaper से मिल रहे हैं, that's well and good. For example, I remember कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर काफी पिछले साल डिबेट हो रहा था बिकॉज ऑफ द 3 फार्म लॉज। सो इन सम न्यूज़पेपर और सम एडिटोरियल, आई थिंक इट वाज बाय प्रोफेसर अशोक गुलाटी, he had mentioned the example of Moga village in Punjab where contract farming had worked very well. So we were arguing in favor of that. I noted that down in my notes and I cited them in my answers, which I think would have helped me because that's not a very famous example which you will get in say coaching notes or something. So keep on the lookout for these kind of examples जो आपको आपके argument substantiate करने में मदद करेंगे. This applies across all papers, ethics or GS3, GS4, GS2 और GS1. So इकोनॉमी में भी ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस के लुकआउट पे रहिए। अगर आपको लगता है कि किसी एरिया में आपको इनफ बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं मिले हैं, नीति आयोग की वेबसाइट पे देयर इज अ नाइस डॉक्यूमेंट जहां वो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऐसे कंपाइल करते हैं। यू कैन गो थ्रू देम फॉर एवरी सेक्टर, यू कैन पिक आउट अ couple of बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड जस्ट यूज देम इन योर आंसर्स, बट यूज दैट एज अ लास्ट रिजल्ट बिकॉज अगेन द थिंग इज कि ये रिसोर्सेज सबको पता होते हैं नीति आयोग के, फॉर एग्जांपल, सो दे आर वेरी कॉमन, सो दे डोंट हेल्प यू डिफरेंशिएटिंग दैट मच। But I fully trust कि newspapers अगर आप पढ़ रहे हैं तो you will get enough of these very good examples. So that's that for economy. Regarding disaster management, again ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है उसमें, apart from the NDA में guidelines, जिसको भी executive summary अगर आपने पढ़ ली है that's enough. आपको हर डिजास्टर समझना पड़ेगा obviously पहले, उसके लिए ज्योग्राफी आपका काफी काम आएगा कि फ्लड क्यों होता है या साइक्लोन क्यों आता है या हीट वेव क्या होता है। हीट वेव का ऑफिशियल डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, कोल्ड वेव का ऑफिशियल डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। Then just some NDMA के guidelines, and don't try to memorize all say 15-20 guidelines, नहीं जरूरत है उनकी, 8-9 guidelines are enough. And even for understanding those guidelines, before trying to memorize them or trying to practice them, first try to think कि अगर आप उस पोजीशन पे हुए तो आप क्या करोगे। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर तूफान आ रहा है तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैं लोगों को शेल्टर पे पहुंचाऊं, मैं उनको पानी खाना का इंतजाम करूं, मैं पावर लाइन्स को सिक्योर करूं, मैं कम्युनिकेशंस को सिक्योर करूं, मैं थोड़े बहुत लाइफ बोट्स अरेंज करूं। सो ये किसी भी नॉर्मल आदमी को ये थॉट सबसे पहले आएंगे दिमाग में। दीज आर समथिंग दैट द इंडियन गाइडलाइंस आल्सो इनकॉर्पोरेट, बिकॉज ऐसा कोई डिफरेंट विजडम नहीं है कि नहीं कि कॉमन आदमी को कुछ और पता है और सरकारी अफसरों को कुछ और पता है। इट्स नॉट दैट। So try to first think कि आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में, and if you can think of those some of the best practices, then they will stay with you throughout the exam cycle. तो आपको फिर उसके अलावा कुछ ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी for disaster management. So that's that. Then again same
philosophy applies कि आप examples collect कीजिए. For example, Odisha has been hailed as a pioneer state in disaster management because cyclone mitigation में ओडिशा ने काफी काम किया है. It has built excellent shelters in collaboration with IIT खड़गपुर, जिसकी वजह से ओडिशा में casualty बहुत ज्यादा कम हुई है compared to say 15-20 years back. So use these examples. For example, Nipa में Kerala has done very well. In lightning, again, lightning strikes, Odisha has one of the highest intensity of lightning strikes, but zero casualties or near zero. So what Odisha has in this? So study all these examples जो आपको न्यूज़पेपर्स में अगेन मिल जाएंगे. नहीं मिल रहे हैं तो whenever you are preparing for a disaster कि अगर lightning के बारे में पढ़ रहे हैं, then just search the internet for lightning best practices या क्या and just lightning or say some newspapers name and आपको मिल जाएगा वो. वैसे if you go through 5-6 news articles, आप you will be able to easily find a couple of good best practices for that. So use these and that's more than enough for disaster management. Again, you have to keep on going through the newspapers कि कोई भी relevant news item आ रहा है या there's an international agreement तो वो क्या है, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा. That goes without saying. So that's that. Security, another important part of GS3. So security के लिए security is again important for prelims as well. उसमें कुछ कुछ चीजें पूछते हैं वो about some forces. So security के लिए there's this book by 2 IPS officers. I don't remember the exact name. It's by Tata McGraw-Hill. I think that's a very famous book. कोई बहुत different book नहीं है. A lot of toppers have cited it. I will upload that the name of the book when I upload my detailed notes and everything on the internet. So उस बुक को मैंने पढ़ा, but that's a very basic level book. आपको उसमें से बहुत ही basic idea होगा कि अच्छा मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो मनी लॉन्ड्रिंग के क्या 4 stages होते हैं. But that's where the book sort of ends. उसके beyond आपको नहीं ज्यादा कुछ knowledge मिलेगा, but it helps in building a skeleton for your notes. That's it. Beyond that, keep on supplementing it with as many news articles as you can find. So, for example, terrorism में है, तो terrorism में क्या हो रहा है, different issues. There are so many different issues, so many different organizations. Try to study them कि अच्छा ये organization है, so what are the peculiar modus operandi of this organization जो हमारे forces के लिए challenge present करता है. Then say different organizations, northeast organizations have a different modus operandi compared to Kashmir के organizations. So वो क्या है and what are the different challenges that they pose to our forces. Again, nothing special preparation required. Newspapers will help you understand these things. So be on the lookout for articles on these things. जब भी ऐसा कुछ होता है, for example, drones are recently in news. कि drones के regarding बहुत attacks हो रहे हैं ना, तो drones के regarding forces क्या कर रही है हमारी, DRDO क्या कर रही है, या अगर drone का जो liberalized policy आया है, how that faces up with the challenge posed by drones regarding security. So try to understand these things. आपको over time आ जाएगा. Once you start reading newspapers over the certain period, you will start getting a hang of these things कि आप खुद से खुद issues को analyze करने लगोगे. Have faith in that. So this is regarding security. Again, keep on collecting best practices. For example, cyber security के ऊपर here was a question कि cyber security, cyber crime क्या होता है, and what are some of the steps and something like that. So उसमें again I had collected some of these examples from the newspapers कि अच्छा भारत सरकार ने कुछ सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं जैसे सम ऑपरेटिंग सिस्टम और समथिंग और सम सिस्टम फॉर प्रोटेक्टिंग द यूएसबी डिवाइसेस. तो मैंने उनको साइट किया अपने एग्जांपल अपने पेपर में, व्हिच आई डोंट थिंक इज अ वेरी कॉमनली साइटेड एग्जांपल. आई थिंक सो, आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग हियर, बट मैंने आई वाज ऑन लुकआउट फॉर देम. आई डिड नॉट रिलाई अ लॉट ऑन द कोचिंग के जो वो होते थे, जो कोचिंग के लिए मंथली कंपाइलेशंस में आते थे, मैंने उन पे ज्यादा रिलाई नहीं किया उन एग्जांपल्स पे. सो कीप ऑन कलेक्टिंग दीस थिंग्स एंड कीप ऑन साइटिंग देम. मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग अगेन फॉर एग्जांपल आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो वो उस बुक से समझ में आ जाएगा, बट देन न्यूज़पेपर से आपको रेलेवेंट यूएन के कन्वेंशंस के बारे में पता चलेगा या इंडिया के क्या स्टांसेस है वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में, वो आपको पता चलेगा. कीप ऑन कलेक्टिंग दोस थिंग्स रिगार्डिंग सिक्योरिटी. So that's that for security, I think. Regarding science and technology again very important for both prelims and mains. Prelims के लिए science and technology में I did not do general science की books NCERTs at all. I thought कि मेरे मतलब I had time but मेरा inclination नहीं था उतना कि मैं उन books को पढूं because I thought कि बहुत ज्यादा वो demanding होंगे, तो मैंने उनको स्किप कर दिया. ओवर द इयर्स यूपीएससी बेसिक सवाल बहुत कम पूछता है. फॉर एग्जांपल दिस ईयर आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन एनिमल वर्सेस प्लांट सेल और समथिंग, बट अगेन आई थिंक इन ऑल प्रोबेबिलिटी अगर मैं पढ़ता भी तो उस एक क्वेश्चन के लिए मुझे बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती, एंड even when I could have got it wrong, so the cost benefit ratio was clearly not in my favor. So मैंने नहीं पढ़ी वो चीजें. एंड जनरली आजकल यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है, इट्स मोस्टली ऑन अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो फॉर एग्जांपल एआई का एप्लीकेशन क्या है, या ड्रोन्स का एप्लीकेशन क्या है, या कोई इंटरनेशनल स्पेस मिशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा, या इसरो के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा. तो इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं.
सो अगेन बी ऑन द लुकआउट कि इसरो कोई मिशन लॉन्च कर रहा है तो क्या है वो, नासा कोई मिशन लॉन्च कर रहा है तो क्या है, ईएसए, जाक्सा, जो रशिया की जो स्पेस एजेंसीज है, चाइनीज स्पेस एजेंसी है, ये लोग क्या नए मिशन लॉन्च कर रहे हैं, वो क्या है, उनके थोड़े बहुत डिटेल्स, नॉट इन मच। अब for- कुछ साल पहले एक क्वेश्चन आया था ऑन द वेट ऑफ अ सैटेलाइट कि वो क्या लॉन्च हुआ था, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप हर साल सैटेलाइट से वेट कलेक्ट करने बैठ जाए, नॉट इम्पोर्टेंट। उस साल आई डोंट थिंक किसी ने भी वो वेट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। सो डोंट बी स्वेड बाय दीस थिंग्स। अगर किसी एक साल यूपीएससी ऐसा कोई बाउंसर क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट शुड नॉट बिकम अ ट्रेंड फॉर यू। ठीक है, सो ट्राई टू एनालाइज अ ब्रॉड ट्रेंड, नॉट आउटलायर्स जैसे हम स्टेटिस्टिक्स में बोलते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन जो ब्रॉड एरियाज पे जो यूपीएससी प्ले करता है उनको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एंड हिंदू का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन होता है संडे को, रीड दैट। उसमें ब्रॉडली टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको मेंशन होगा, कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ मेंशन है, देन ट्राई टू स्टडी अ बिट ऑन दैट, टेक द हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियोस एंड एवरीथिंग, बट डोंट गो इनटू टू मच डिटेल इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड। उतना जरूरी नहीं है। आई थिंक बाय कॉमन सेंस यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दोज एरियाज। So that's that about science and technology for prelims. For mains, again, mains के लिए तो I think science and technology is much easier because उसमें you don't need to know even these specific details जो prelims में हो सकता है आपको जानने की जरूरत पड़े. So mains में you need to know about important scientific thinkers from India and from abroad. So India के लिए there are many famous ones of course, जैसे सीवी रमन सर हो गए या जो जगदीश चंद्र बोस हो गए, इनके आपके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन भी आया हुआ है एक इसके ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं, दे कीप ऑन डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज बाय इंपॉर्टेंट इंडियन इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल टीआईएफआर है या आईआईएससी है या आईआईएससीआर है, इनके जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस होते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू उन्होंने पब्लिश किया है तो कीप स्टडी अ बिट अबाउट दैट। फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर इट वाज लॉट इन न्यूज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, और से फॉर एग्जांपल सुपर कंडक्टिंग के ऊपर काफी न्यूज में था। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, उनके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, दैट्स इट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बियॉन्ड अगर कुछ क्वेश्चन आता है, देन फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। आई थिंक हार्डली एनीवन वुड हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन। आपको उन लेवल के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन नेवर प्रिपेयर फॉर सच क्वेश्चंस, सो डोंट वरी अबाउट देम। मैं जब प्रिपेयर करता था, एक बार को मुझे भी डर लगा जब मैंने वो क्वेश्चन पेपर खोल के देखा था कि अच्छा इस साल ये पूछा है। आई थॉट कि यार मैंने अभी तक जो पढ़ा है इसमें तो आई कैन नॉट आंसर दीज क्वेश्चंस, बट over time I realized कि I cannot answer that question and I should not be able to answer those questions. UPSC is not expecting me to answer those questions. ठीक है, बिकॉज अगर मैं उनकी तैयारी में लग जाऊंगा देन जो श्योर शॉर्ट एरियाज है मेरा उन पे टाइम कम जाएगा। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू बी स्वेड बाय दिस रैंडम क्वेश्चंस दैट आर देयर इन सम इन पेपर्स लाइक दिस, और वो हर साल किसी एक पेपर में आएंगे ही ऐसे क्वेश्चंस। यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर देम, सो रीड देम आउट। यही ब्रॉड एरियाज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। दैट्स इट रिगार्डिंग GS4, अगेन एज आई सेड इन द अर्लियर पार्ट कि आप जो एआरसी का जो फोर्थ रिपोर्ट है उसको अच्छे से पढ़े, कवर टू कवर पढ़े, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट एथिकल इश्यूज। मैंने एथिक्स के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ एआरसी का जो फोर्थ रिपोर्ट था, दैट वाज द वन बुक दैट आई स्टडीड, दैट वाज द वन डॉक्यूमेंट दैट आई स्टडीड फ्रॉम कवर टू कवर। मैंने उसको अच्छे से पढ़ा, उससे नोट्स बनाए। उसके बियॉन्ड मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी एआरसी या एथिक्स के लिए, बिकॉज आई ट्राइड रीडिंग लेक्सिकन, आई फाउंड इट एक्सट्रीमली यूजलेस एंड एक्सट्रीमली बोरिंग। तो उसकी जरूरत नहीं है ऑनेस्टली, बिकॉज आपसे यूपीएससी फिलोसफी के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है कि डीओंटोलॉजिकल अप्रोच क्या है या वेयर आर वी हेडेड या व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, आपको सिंपली यूपीएससी का पर्पस ये है कि भाई जिंदगी में एथिकल डिलेमास आते रहेंगे, ठीक है, आपका अप्रोच क्या है उनके तरफ। ठीक है, और वो पढ़ने के लिए, वो जानने के लिए आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस काफी है। आप अगर एलिजिबल है सिविल सर्विस लिखने के लिए, देन यू मस्ट बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 21 ईयर्स में आपने जो भी डिलेमास फेस किए हैं, यू मस्ट हैव इंटरनलाइज्ड अ लॉट ऑफ एथिकल मॉरल कंपासेस विद इन योरसेल्फ। रिलाई ऑन देम, दैट्स इट। यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड कि वेयर योर एथिक्स कम फ्रॉम and how to present that effectively in the paper. That's it. That's all you need to do for ethics. To do that, practice a lot of questions. So case studies को practice कीजिए. Try to be as innovative as you can in your solutions to the case study. Don't be run of the mill. ठीक है, I think I did this mistake. मुझे पता नहीं है, अभी मार्क्स आए नहीं है. So but I think I was guilty of this कि जितने ये फॉर्मुलिक आंसर्स बन गए हैं आजकल एथिक्स में कि आप ऐसे स्टेक होल्डर्स के डायग्राम बनाए, क्लाउड डायग्राम, उनके एरो ऐसे निकाल के अलग अलग स्टेक होल्डर्स मेंशन कर दे एंड देन यू प्रोसीड विद एन आंसर। आई डोंट थिंक दैट्स रिक्वायर्ड। मुझे नहीं पता इफ दैट वर्कड फॉर मी और नॉट। मैंने आई थिंक मुझे याद नहीं है मैंने एग्जैक्टली क्या लिखा था, बट एज फार एज आई रिमेंबर मैंने सारे क्वेश्चन जितने 6 के 6 केस स्टडी आए थे, 5 जो भी थे, मैंने सब में ऐसे डायग्राम्स बना दिए थे। बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में दैट्स फिटिंग, देन डू दैट। अगर नहीं लग रहा है, देन डोंट डू दैट। ऐसा कोई फॉर्मुलेक
यूपीएससी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया है कि भाई ये तो तुमको करना ही, उसके बिना नहीं मिलेगा आंसर, नहीं मिलेंगे मार्क्स, ठीक है। ओनली थिंग दैट यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग ऑफ यू कि उसने जो पूछा है आपसे, आप उसको आंसर कर रहे हैं कि नहीं, आप उसको किस तरीके से आंसर कर रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल, ठीक है। तो ऑल दीज डिबेट्स आर एब्सोल्युटली इररेलेवेंट, डोंट बी स्वेड बाय देम, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि आप को वो डायग्राम्स नहीं बनाने चाहिए, आप मत बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं प्रोज कॉन्स और उसके बाद फाइनल आपका आंसर, डू दैट। अगर आपको लगता है कि आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं, देन डू दैट, एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, डू दैट। अगर आपको लगता है कि आप डायग्राम बना के कर सकते हैं, डू दैट। Whatever works for you is fine, whatever sails your boat. So ethics में that's it. And again, ethics में case studies and for examples are very very important. Read the newspapers, try collecting as many examples as you can. Here a big thank you to TED Talks, TEDx videos on the internet, because I'm a big fan of TED. मैं उनके videos काफी regularly देखता था, and they have incredible stories of incredible people in the world who have done so wonderful things, and I used to collect examples from there. अग्रीड कि वो इंटरनेशनल ज्यादा फोकस रहता है उनका, बिकॉज दे हैव अ ग्लोबल फोकस, सो इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल्स आपको बहुत कम मिलेंगे, बट आई थिंक व्हाट दीस पीपल डिड इज अप्लाइड यूनिवर्सली। फॉर एग्जांपल मरी क्यूरी के जो सैक्रिफाइसेस एंड व्हाट शी डिड फॉर साइंस इन जनरल is universally applicable, be it in India or be it in any other place in the world. So you can cite her case in, say, sacrifice or love for knowledge or love for your work, or say women empowerment, or in so many ways. So all these things. So you can watch TED videos, excellent life stories of so many wonderful people, very inspiring again. So वो आप जब आप low feel करो तब भी आपको help करेगा, and it will also help you gain a lot of knowledge. So if you don't watch TED videos, highly recommended कि आप TED videos देखें. देन एग्जांपल्स न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं, डोंट गो ऑन अ स्पेसिफिक लुकआउट कि मुझे एग्जांपल्स कलेक्ट करने हैं, एम्पल एग्जांपल्स आते हैं ऑफ पीपल फ्रॉम द सिविल सर्विसेज जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में हैं, जो जिन्होंने अच्छा काम किया है, या पीपल आउटसाइड द सिविल सर्विसेज व्हिच थैंकफुली आर मोर इन नंबर। तो सिविल सर्विस के बाहर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी एग्जांपल्स बहुत एम्पली आता है न्यूज़पेपर में. Keep on the lookout for them, be on the lookout for them, and try to incorporate as much as you can from their life stories. I will again upload my answers. There are lots of examples that I have collected. You can use them, but again I would suggest not. आप अपना जर्नी बनाइए, आप अपने एग्जाम्पल्स कलेक्ट कीजिए, वो आपका अपना इंटरनलाइज अंडरस्टैंडिंग होगा. आपको खुद अगर पसंद आएगा वो एग्जाम्पल, तभी आप यूज कर पाएंगे उस एग्जाम में. डोंट ट्राई टू यूज एनीवन एल्सेज एग्जाम्पल. It does not work. Quotations you can collect from different places, specific areas के ऊपर quotations. Again newspapers में आते हैं ये quotations. If you read some books, then आपको वो quotations पता चल जाएंगे. TED again is a very good source of these, because TED के videos के starting में they have wonderful quotation, so you can collect those. So all these things can be very helpful for both essay and ethics. So ethics के लिए that's it. Try to practice as much as you can. Quotations अगर आप पढ़ रहे हैं तो quotations will help you in answering the ethics में जो एक question आता है कि what do these quotations mean to you, वो 30 नंबर का जो question होता है, that will also be very helpful in answering that. Apart from that, ethics के लिए as you can see it's a very unpredictable thing. 2019 में ethics में bumper marks बटे थे सबको, one of the highest scoring papers. इस साल ethics का पेपर काफी difficult आया था, at least that's what I felt. बाकी मुझे नहीं पता कि marks कैसे आए हैं, बट मुझे काफी चैलेंजिंग लगा था वो पेपर. सो तो एथिक्स में कोई कन्वेंशनल अप्रोच नहीं चलता है, जो आपको कोचिंग वाले जो आपको पेडल करते आ रहे हैं कि भाई ये लिखना है, ऐसे ही लिखना है. ऑनेस्टली मैंने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था उसमें आई हैड अ सॉर्ट ऑफ बैड एक्सपीरियंस. एग्जाम के 10-15 दिन पहले आई हैड अ हॉरिबल फीडबैक ऑन माय आंसर शीट बिकॉज आई डिड नॉट फॉलो देयर फॉर्मूला ऑफ राइटिंग एथिक्स, बट आई स्टक टू माय गन्स. मैंने जो लिखा वो लिखा, नॉट इन द केस स्टडीज अनफॉर्चुनेटली, बट इन द नॉर्मल आंसर्स. एंड आई थिंक आई वुड हैव स्कोर्ड, आई डोंट नो व्हाट, डिसेंट मार्क्स तो आ ही गए हों. तो ये है. सो believe in yourself, believe in whatever approach works for you in ethics. That's very very important, and not just in ethics but also in essay, because essay is again very individualized. GS 1 to 3 are still more की formulaic हो सकता है थोड़ा बहुत, but essay and ethics are very very individual papers. वो आपके बारे में है, ठीक है, वो बहुत wide ranging papers होते हैं. For essay again I did not have a very good experience with my test series. I always felt कि मैं अच्छा ऐसे लिखता हूँ स्कूल डेज से, कॉलेज डेज से. एग्जाम के एक हफ्ते पहले आई रिमेंबर मेरा एक टेस्ट सीरीज का करेक्ट होकर ऐसे का पेपर आया था, एंड आई स्कोर्ड 60 मार्क्स आउट ऑफ. आई वाज एब्सोल्युटली शैटर्ड. मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने वाला था. सो आई वाज प्रीटी डेवास्टेटेड, एंड स्मृति एंड उज्जवल बोथ ऑफ देम रियली हेल्प uplifting me कि नहीं, you don't need to bleed these scores, you write good essays, just focus on that. And Anudeep Bedi Shetty sir को मैंने मेल किया था randomly because I am a subscriber to his blog. I keep on receiving his very helpful emails, so I just emailed him randomly
And essay exam, which was the first paper of the mains exam, I received this email, which is very, very inspiring for me because essays are just fine. Just go and pour your heart out on the answers. That will be enough. So essays may there will be a philosophical essay and there will be one non-philosophical essay. You have to prepare for both. So challenge yourself. लिख रहे हैं एटलीस्ट 3-4 एसेज तो आप फिलोसफिकल की लिख लीजिए बिकॉज उसमें बहुत चैलेंजिंग होता है. देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ डिविएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे. दैट सेंट्रल आइडिया कैन बी एनीथिंग फॉर यू. आई एम नॉट सेइंग आइडिया फिक्स होता है बिकॉज वो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें इंटरप्रिटेशंस बहुत सारे हो सकते हैं. बट वंस यू सेट द इंटरप्रिटेशन के कपल ऑफ पेजेस में स्टिक टू दैट. ठीक है, आप उसको फ्लैश आउट कर सकते हैं ऑब्वियसली मल्टीपल डिमेंशंस, बट वो क्रिएट मत कीजिए. ठीक है, तो ट्राई टू कीप ऑन वॉट एवर आर्ग्यूमेंट्स यू आर मेकिंग, keep to your the core idea of your essay जो है, don't deviate from that because so essay is like कि आपने एग्जामिनर को एक कमरे में इनवाइट किया है, वो कमरा आपने बनाया है. ठीक है, it's the world that you, especially in philosophical essays, that does not apply to policy based essays. Philosophical essays में you create a world and you're inviting the examiner to that world to understand that world from your perspective. ठीक है, यू कैन क्रिएट वॉट एवर वर्ल्ड यू लाइक गिवन द रूल सेट बाय यूपीएससी कि भाई ये टॉपिक है, इस टॉपिक में आप बहुत सारे वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं. बट वंस द एग्जामिनर इज इनसाइड दैट वर्ल्ड, यू कैन नॉट कीप ऑन पुशिंग हिम इन एंड आउट कि आप बार बार डिविएट कर रहे हैं टॉपिक से. डोंट डू दैट. ठीक है, आपने एक बार उसको इन्वाइट कर दिया है, लेट हिम एक्सप्लोर, टेक हिम टू मल्टीपल प्लेसेस विद इन दैट वर्ल्ड. ठीक है, आप उसको आर्ग्यूमेंट्स को फ्लैश आउट कीजिए. ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से कीजिए, बट स्टिक टू दैट कोर आइडिया. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. So no matter how good you think you are at writing essays, practice at least 3-4 essays of philosophical kind and a couple of essays or 3-4 again if you have the time of policy based essays. Essays में again structure is important. So keep on, so paragraph में लिखिए अच्छे से in short paragraphs if possible, if that works for you. If you write in long paragraphs, that's fine. If you can change that, that's good. If you can't, then don't write, because don't kill your originality because of something that someone else said. ठीक है, so be as original as you can while writing essays. That's completely your paper. ठीक है, so ये ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंड कलेक्ट कोटेशंस, एंड कोटेशंस के लिए अगेन कोचिंग्स ने ऐसा पेडल किया हुआ है, आप टेस्ट सीरीज लिखेंगे तो वो आपको पेनलाइज करेंगे इफ यू डोंट स्टार्ट विद द कोटेशन, या देयर इज सम रैंडम थिंग दैट दे हैव इन देयर मार्किंग कि आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखा है कि नहीं. आई नेवर अंडरस्टूड व्हाट द थीसिस स्टेटमेंट इज. मैं पीएचडी नहीं सबमिट कर रहा हूं अपनी, सो आई नेवर अंडरस्टूड कि वो क्या है. ठीक है, सो बट अगर वो नहीं किया देन दे पेनलाइज यू फॉर दैट. आई डोंट थिंक यूपीएससी ऐसा कुछ करता है. ठीक है, सो कोटेशन का भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको शुरू करना है कोटेशन से, या यू हैव टू स्टार्ट विद अ स्टोरी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. ठीक है, एंड अगेन स्टोरी के लिए I started one of my essays with a story. So the story about the ship sinking वाला जो essay था हमारा philosophical kind, I started that with a story. But my story was, I think, a slightly different one because that was based on a film, जो शतरंज के खिलाड़ी, which is a famous सत्यजीत रे film. I cited the story of that film. So I started with that only. So I was slightly scared exam में कि मैं अपना essay paper शुरू कर रहा हूँ with a film that might backfire, but I hope not. बाकी तो marks आएंगे तभी पता चलेगा. But the idea is कि you can be as innovative and imaginative while using your essay paper. So there is no formula. You don't have to start with the quotation if you don't feel like it. You don't have to start with a set story if you don't feel like it. ठीक है, आपकी story ऐसे बहुत inspiring या ऐसा कुछ cooked up नहीं होना चाहिए. It can be from pretty much any area which helps you drive home your point. That's it. So that's about the essay. Follow a decent structure and try to जो brainstorming का जो again which is a very important advice जो सारे toppers ने दिया है holds true कि आप स्पेंड एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर पेनिंग योर एसे डाउन कि आप स्ट्रक्चर कर ले कि आप क्या क्या ब्रॉड टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, दैट अगेन हैज टू बी स्लाइटली फ्लेक्सिबल कि यू डोंट हैव टू एकदम की लिख लिया है तो उससे डिलीट नहीं करना है, बट jot down the broad idea that you're getting and try to then flesh it out in the answer so that you still have a structure to start with. ठीक है, otherwise there is a lot of tendency for you to deviate. ठीक है, so brainstorming पे फोकस करें and spend some time with that and then only start writing your essays. essays के लिए again there is no required length कि आपको जितने 12-13 पन्ने जो यूपीएससी देता है आपको सब भरने हैं या आपको नहीं भरने, ऐसा कोई नियम नहीं है. जितना में आपको लगे कि आपने लिख लिया सफिशिएंटली 1000-1200 वर्ड 1500 वर्ड जो भी है, that's enough. ठीक है, don't unnecessarily stretch your essay, don't unnecessarily try to be concise. जो भी आपको ideal length लगे, that's it, stick to that. No matter what any coaching guy or any senior or anyone says to you, no matter what I also say, feel comfortable, do whatever you are comfortable in essay and the ethics paper especially. Regarding diagrams in GS papers, I am terrible at sketching. मुझसे diagrams नहीं बनते थे,
सो इन ऑल माई जीएस पेपर्स मैंने एक डायग्राम बनाया था विच इज ऑल्सो अ ग्राफ इन माई जीएस पेपर टू एक्सप्लेन द पोटेंशियल जीडीपी 1। वो क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो वो मैं सिंपल जो मार्शलिंग क्रॉस टाइप का जो डायग्राम होता है डिमांड सप्लाई का, आई यूज दैट। दैट्स नॉट अ वेरी स्पेशल डायग्राम और कोई बहुत फैंसी डायग्राम नहीं है। उसके अलावा मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया, ज्योग्राफी में मैंने एक भी डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैं वो करने जाऊंगा आई विल वेस्ट माई टाइम, बिकॉज मुझसे इंडिया का मैप नहीं बना आज तक। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश करी, प्रैक्टिस किया, बिकॉज बहुत लोगों ने बोला है, एंड दैट्स अ गुड एडवाइस। इफ यू कैन देन इट कैन बी एन एक्सीलेंट टूल फॉर यू, if you can use the India map. But again, my point is कि there is no set rules. I am sure there will be other people जो drawing में थोड़े से weak हो, तो don't be worried and don't try to spend a lot of time on this. पेपर में अगर आपसे नहीं बन रहा है डायग्राम, सॉरी व्हेन यू आर गिविंग मॉक्स, और अगर आपको लग रहा है कि आपसे डायग्राम नहीं बन रहा है, then don't try to do that. Don't try to incorporate unnecessary flowcharts in the answer कि मुझे फैंसी दिखने के लिए मुझे वो डायग्राम बनाना है, बिकॉज डायग्राम का एडवाइस अब इतना फॉर्मुलेट हो चुका है कि pretty much everyone is doing it. So there is no innovativeness left there. ठीक है, सो अनलेस यू थिंक दैट अ डायग्राम इज रियली हेल्पिंग यू, डू दैट। बहुत लोगों के लिए होता है कि व्हेन दे आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, देन अ डायग्राम कैन बी एन एक्सीलेंट टूल टू कवर अप स्पेस एंड आल्सो say whatever you want to say. But if you are not, if you don't have that problem and if you can put your point across in words, then do that. ठीक है, so whatever sails your boat, again whatever you are comfortable with. If you think कि किसी क्वेश्चन में points are better, do that. Points are generally better, I agree, at least that's what I feel. Because A, that saves time, and B, you can give a more structure to your more structured feel to your answer, और एग्जामिनर को भी ऐसा लगता है कि आपने ज्यादा कुछ लिखा है, तो डू दैट। पॉइंट्स में लिखिए। इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन इज अ गुड फॉर्मेट टू फॉलो, कि यू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, यू कंक्लूड विद द कंक्लूजन। इसके रिगार्डिंग भी अगेन देयर आर मल्टीपल डिबेट्स। सो मैं जब टेस्ट लिखता था टेस्ट सीरीज में, तो मैं वे फॉरवर्ड लिखता था, मैंने यूज्ड टू राइट 3-4 पॉइंट्स अंडर दैट। मुझे कोचिंग वालों ने बोला कि नहीं, वो वे फॉरवर्ड के वो 3-4 पॉइंट्स के बाद आपको एक और कंक्लूजन लिखना है इन अ कपल ऑफ लाइंस। तो मुझे वो काफी अननेसेसरी लगता था कि भाई मैंने वे फॉरवर्ड लिख दिया, दैट्स ऑलरेडी माय कंक्लूजन। तो बट दे सेड दैट, बट आई डिड नॉट फॉलो टू मच एडवाइस ऑफ देयर, सो मैंने उसको इग्नोर किया। सो अगेन, मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं था तो मैंने नहीं किया। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, डू दैट। आपका एक अपना फॉर्मेट हो, अगर है, आपको लगता है कि दैट्स वर्किंग वेल फॉर यू, देन डू दैट। ठीक है, आई डोंट थिंक यूपीएससी अपने एग्जामिनर्स को ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर बच्चे ने इस फॉर्मेट में लिखा है तभी उसको नंबर देना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी डाइवर्स एग्जाम। ठीक है, 10,000 से ज्यादा बच्चे लिखते हैं, देयर कैन नॉट बी अ सेट फॉर्मूला, थैंक गॉड कि देयर इज नो सच सेट फॉर्मूला। तो फील फ्री, ठीक है, इन पेपर्स में। सो आई कवर्ड डायग्राम्स, आई कवर्ड पॉइंट पैराग्राफ, आई कवर्ड सोर्सेज। सो प्रीलिम्स में वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस इज स्टे फ्लेक्सिबल एंड स्टे काम। सो जब मैं टेस्ट सीरीज जब सॉल्व करता था, I noticed कि when I solve more than 90 questions, that's the optimum for me. मुझे तभी मार्क्स ज्यादा आ रहे, between 90 and 95 questions. जब मैंने एग्जाम में पेपर खोला, my set was set D, and उसमें शुरुआत के सारे questions were from environment, agriculture and art and culture, which were very difficult. तो मुझे कुछ 3-4 पेजेस में I hardly knew 2-3 questions out of 20-30 questions. मुझे 2-3 से ज्यादा नहीं आते थे, क्योंकि जितने पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो सब 50 के बाद थे, और मैंने सीरियली अटेम्प्ट किया था सारा पेपर। तो थैंकफुली आई डिड नॉट पैनिक। तो मैंने जो फर्स्ट गो में जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, दैट वाज ओनली 35 क्वेश्चंस और समथिंग, व्हिच आई वाज एब्सोल्युटली श्योर अबाउट। सेकंड गो में आई जस्ट रीच 67 क्वेश्चंस और समथिंग, देन आई स्लेप्ट ऑफ, बिकॉज उसके बाद मुझे नहीं आ रहे थे क्वेश्चंस, एंड आई वाज वेरी वरीड कि मैं क्या करूं, बिकॉज मेरा टारगेट था टू अटेम्प्ट 90 प्लस क्वेश्चंस, बट मुझे 67 से ज्यादा नहीं आ रहे थे। तो मैं सो गया एग्जाम में। आई वोक अप अराउंड 15-20 मिनट्स व्हेन इट वाज अबाउट टू एंड। मैं उठा एंड आई जस्ट ब्राउज थ्रू माय पेपर, मुझे रैंडमली कुछ क्वेश्चंस दिखे एंड आई जस्ट मार्क व्हाटएवर आई वाज फीलिंग अबाउट। मैंने कुछ 14-15 क्वेश्चंस वैसे मार्क किए हैं। आई अटेम्प्टेड अराउंड 81 और 80 क्वेश्चंस। उसमें आई टुक सम रिस्क्स, बट थैंकफुली I backed my intuition and my subconscious mind was working fine because I was calm that day. I had a good night's sleep, and these are very important things. So there was a question on Ascot Wildlife Sanctuary and musk deer. I remember reading somewhere about musk deer being found in the Ascot Wildlife Sanctuary. तो मुझे याद आया उस टाइम लास्ट में कि अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, देन देयर वर 2 ऑप्शंस लेफ्ट। देन मैंने सोचा कि अगर अस्कोट में है तो उसके आसपास के ही किसी नेशनल पार्क में मस्क डियर होता होगा, ऐसा नहीं है कि एक हिमाचल में मिल रहा है तो दूसरा आसाम में मिलेगा। तो आई थॉट कि जो आसपास है उसको मार्क कर दो। आई डिड दैट एंड थैंकफुली आई गॉट इट करेक्ट। सो ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जहां पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बट डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क। एज आई सेड कि मैं टारगेट बना के किया था कि मैं 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊंगा। आई रियलाइज कि आई कैन नॉट अटेम्प्ट मोर देन 81 क्वेश्चंस, तो मैंने नहीं किया उसको। That was my strategy. I had to change it on the spot. So be absolutely calm while attending the paper. I guarantee you कि चाहे कितना भी हार्ड पेपर आए, there will be at least 40 questions जो आप, अगर आप decent level of preparation के साथ गए हैं एग्जाम में, you will be able to solve.
ठीक है, इकोनॉमी के क्वेश्चंस, पॉलिटी के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के बेसिक क्वेश्चंस होंगे ही होंगे जो आपको आएंगे। डोंट पैनिक अगर आपको कुछ हार्ड क्वेश्चंस दिखे तो, ठीक है, हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, ठीक है। डोंट थिंक अबाउट कट ऑफ्स और एनीथिंग व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, ठीक है। थिंक अबाउट द क्वेश्चन राइट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट मैटर्स इन दैट मोमेंट, ठीक है। That's it about prelims. All the best, stay calm, and I'm sure all of you who have prepared well will come off with flying colors and see your name next year in the list. All the best to everyone.